Jai Janendra. I would like to put on record for Jito Chandigarh having given me an opportunity to present this today. And I'll start with Ramanji Jain, Chairman North Zone, Arpit Jain, Joint Secretary North Zone, Rajivji Jain, Advisor North Zone, Sudhir Jain, Chairman Ludhiana, Manish Jain, Chairman North Delhi, Lokesh Jain, Chairman Jito Chandigarh Tri-City Chapter, Dharam Bahadur Jain ji, Vice Chairman, Mahavir Jain ji, Vice Chairman, Sunil Jain, Chief Secretary, Asima Jain, Chairperson, JLW, Vibha Jain, Chief Secretary, JLW, Akshat Jain, Youth Wing, and many other dignitaries who have come today here. Thank you very much. Thank you so very much. So let me start today. देखिए मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ जो we keep talking. Can we have this on please? So I will tell you today. आप लोगों ने ओरा के बारे में सुना होगा, right? Each one of you know about aura? We all know about aura. So aura, as we can see, ये जो आपने कोई भी it is right behind our thing. You know, you can see those round chakra आप जो देख रहे हैं. That's an aura, आभा मंडल जिसको बोलते हैं. The light that you see behind us. It is not that the light is only with the God. Huh? Each one of us have that kind of light. Do you know that? Have you ever seen? No, I'll show you today. Yeah, I'm telling you, I'll show you today. Okay, so again, another example of an aura. So essentially, what is aura? Aura is, scientifically spoken, is the ability of an object to radiate some light, some kind of power, you know, which comes from anything. Like if it's a living being, from the body. If it is non-being living, so it can be even from a pen. Anything. Any power which emits out of an object, be it living being or non-living being, is called an aura. Is called the ability of its power to impress upon you. So, bigger the aura, stronger you are. But for that you have to know, how to know what size of aura is good aura. So, generally, a swasth vyakti, you and me, if we are all strong and nice and good, then our aura will become anywhere between 2.45 to 2.5 meter radius. People who have viral or something like that will have their aura coming down to about 2 meter radius. People who have asadhya rog, like terminal cancer illness or any such bimari, their aura will fall down to 1.15 meter radius. And हिंदी में बोलूँ ठीक है. So I'll speak. मैं हिंदी में बात बोलूँगा. I'm sorry. Okay. तो जब व्यक्ति का ऑरा, जब किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाती है, जैसे कि व्हाट यू कॉल कैंसर वगैरह बीमारी हो जाती है, तो आपका ऑरा कम होके 1.15 मीटर रेडियस हो जाता है. जिनकी मृत्यु नेचुरली नेक्स्ट 10 डेज में होने वाली होती है, उनका ऑरा कम होके 0.9 मीटर रेडियस हो जाता है. और डेड बॉडी का भी एक ऑरा होता है 0.6 मीटर रेडियस 72 घंटे तक. सो कैन यू इमेजिन कि आप मान सकते हो कि जैसे जैसे आपका ऑरा छोटा होता है, एज इफ यू आर ऑन योर वे आउट. सो ज़रूरत क्या है कि आपका ऑरा बड़ा कैसे होवे, हाउ टू मेक योर ऑरा स्ट्रॉन्गर, आप उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें जैन मंत्र का क्या प्रभाव है उसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र, कौन सा पद बोलने से आपका ऑरा कैसे बड़ा होता है. और ऑरा जब बड़ा होगा तो क्या होगा, इसी जब आपका ऑरा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द एक अभेद्य किला सा हो जाता है. यू नो, यू क्रिएट अ फोर्ट्रेस अराउंड यू. सो उससे क्या होता है कि बाहर की जो इम्प्योरिटी है वो आप में नहीं घुसेगी. यू विल बी योर सेल्फ. आप में जो आपकी खुद की ताकत है वो इट विल कम आउट, और आपको दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंसी नहीं होगी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, आपने देखा है कभी जगह पे कि somebody walks in into the place और आप उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं हो, फिर भी आप बाध्य हो जाओगे उनकी ओर देखने के लिए.
you will feel like looking at him or her without knowing them कि क्या उनका background है, but yet their presence will be felt. That presence will be felt is what aura is all about. ठीक है? So today आज मैं आपसे बताऊंगा कि how you can increase your aura. और मैं आपको एक बात और बता दूं, aura से 3-4 चीज का पता चलता है. एक aura से आपकी present mindset क्या चल रही है वो पता चलता है, एंड मैं उसका लाइव डेमो दिखाऊंगा. विल पिकअप, आप में से ऑडियंस में से किसी एक को मैं बुलाऊंगा यहाँ पर और मेजर करके दिखाऊंगा. और सेकेंडली पॉसिबल फ्यूचर में क्या रोग आ सकते हैं उसके बारे में भी पता चलता है. नंबर 3, इट कैन, ये आपको बता सकता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, हाउ तम आपकी इम्पैक्ट क्या होती है, एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट आप पे क्या आ रही है वो आप इसमें देख सकोगे. एंड नंबर 4, ऑफ कोर्स आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कितनी है, आपका कितना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है उसके बारे में पता चलेगा. सो लेट अस स्टार्ट कि ऑरा. अच्छा एक बात बताऊं, ऑरा जो है वो उसका डिपेंडेंस है ऑन 7 चक्रास. डू यू नो अपना 7 चक्रास होता है? वी ऑल नो दैट, राइट? सो आई एम कमिंग टू दैट. नमोकार मंत्र से चक्रा कैसे बैलेंस होता है उसकी मैं बात बताऊंगा आपको. सो टुडे वी आर गोइंग टू, अपन जो बात करेंगे वो 3 हिस्से में बात करेंगे. एक में बात करूंगा आपको पावर ऑफ जैन मंत्र, जिसमें मैं नमोकार मंत्र और कुछ भक्तामर के कुछ स्तोत्र के बारे में बताऊंगा कि आप उसको कैसे रिसाइट कर सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है. सम ऑफ देम विल बी लाइव डेमो. उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एनर्जेटिक्स की, कि किस टाइप की एनर्जी आपको ज़िंदगी में क्या दे सकती है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट, और अगर नहीं है तो उसको कैसे आप ला सकते हो अपने लाइफ में. सो विल प्रीडोमिनेटली टॉक अबाउट कि हाउ एनर्जी से आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, और मे बी यू कैन हैव बेटर मनी, मोर हैप्पीनेस इन लाइफ वगैरह वगैरह. और तीसरा बात करेंगे अगर समय रहेगा तो, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ टाइम हैज़ गॉन, कि नंबर्स आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट कि हाउ कैन यू फाइंड आउट योर लकी नंबर और उसको कैसे आप यूज़ कर सकते. अभी तो वी जस्ट स्टार्टेड, सो अभी बाद में पूछ लूंगा रस कैसा है, वो द लेवल ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर से बात करेंगे. सो आई मैं आपको है ना क्विकली 7 चक्रस का इंपॉर्टेंस जिंदगी में क्या है उसके बारे में बता देता हूं, सो दैट मैं जब आप में से किसी को बुलाऊंगा, आपका मेजर करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ योर लाइफ यू नीड टू वर्क ऑन. ठीक है? और नमोकार मंत्र के कौन से पद से वो ठीक हो सकता है. सो आई विल आस्क यू टू रिसाइट टुगेदर. अपन एक साथ बोलेंगे एंड वी विल सी कि वो चक्रस चेंज होता है कि नहीं होता है. अगर वो होता है तो आप मानना कि यू नो मंत्र में ये ताकत है. सो ये 7 चक्रस जो होते हैं, यू कैन सी वो नीचे से चालू होते हैं. कुंड मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. मूलाधार चक्र जिसको बोलते हैं, रूट चक्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है. देन इट इज मणिपुर चक्र, ऊपर में हार्ट चक्र, अनाहत चक्र बोलते हैं, विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, फिर थर्ड आई चक्र जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, और सहस्त्रारा द क्राउन चक्र. ये 7 चक्र यदि आपका बैलेंस में हो जाएगा, आई कैन टेल यू कि आपका ऑरा 2.5 मीटर नहीं 6 मीटर होगा, 7 मीटर होगा. यू नो आपको ऑरा के में बात में एक बात मैं बताना रह गया कि जैसे अपन मंदिर जी में जाते हैं तो प्रतिष्ठित मूर्तियों का ऑरा जो है ना ऑलरेडी 40 to 45 मीटर रेडियस होता है. तो अगर आप रोज जाते हो मंदिर में और भाव से, जैनिज्म इज ऑल अबाउट भाव, अगर भाव से आप प्रार्थना या सेवा वगैरह करते हैं तो योर ऑरा कैन एनहांस बाय अबाउट 4 to 5 मीटर. और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं कि बिफोर गोइंग इनटू मंदिर एंड आफ्टर कमिंग आउट व्हाट वाज द डिफरेंस. लेकिन बाय द इवनिंग वो वापस उतना ही हो जाएगा जितना इट वाज देयर. सो प्रोबेबली इन गुड ओल्ड टाइम रिलीजन वाज द ओनली व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपको बताया जाता था कि रोज आपको जाना चाहिए मंदिर. तो बट वी हैव नोटेड इट. और फिर ऑफ कोर्स आपका फूड भी कैसा होना चाहिए. यू विल टेल मी सात्विक, लेकिन सात्विक की क्या परिभाषा है? एनीबडी कैन टेल मी सात्विक? सो आई विल मेक इट सिंपलर कि सात्विक का मतलब है लाइक वी हैव मेजर्ड द जैन थाली का ऑरा. इट इज़ अबाउट 4.3 मीटर रेडियस. अब आपको लाइफ फोर्स के लिए 2.5 मीटर चाहिए. तो यदि आपके पास 4.3 मीटर रेडियस का खाना खाते हैं, ऑब्वियसली इट विल सपोर्ट यू. बट कन्वर्सली वी हैव मेजर्ड द ऑरा ऑफ लेट्स से
जंक फूड, पिज्ज़ा का ओरा 0.9 मीटर रेडियस, तो पिज्ज़ा खा के यदि मैं आपका ओरा मेजर करूंगा तो इट विल फॉल डाउन टू लेस देन 2.5, ठीक है। तो ये एक्चुअली ओरा का अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आई थॉट कि यू शुड नो अबाउट इट। सो ये 7 चक्रस के बारे में एक बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रूट चक्रा। और मैं आपको बता दूं, नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणं से ये थर्ड आई चक्र, फिर नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासणो, और मंगलाणम चम सवसी पढ़मम वही मंगलम। रूट चक्र, अगर रूट चक्र बैलेंस करना है तो कौन सा होगा पाठ? मंगलाणम चम सवसी। मैं 8, 10 बार, 20 बार बोलूँगा आपको, ताकि आपको भी कंठस्थ हो जावे ये किस क्रम में होता है। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जिंदगी में रूट चक्र की क्या महत्वता है? मूलाधार चक्र जिसको बोलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली एट द बॉटम, जिससे नाम ही बताता है, मूल जिसका आधार है। दैट मीन्स दैट इज अ फाउंडेशन स्टोन, जिसके बिना आप में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सो जिंदगी में यदि आपको ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इफ यू आर वांटिंग कि मतलब अब हो गया, मैं यही हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, इस टाइप की फीलिंग अगर चाहिए तो आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र बैलेंस मोड में होना पड़ेगा। जब आपका रूट चक्र बैलेंस मोड में होता है, जब वो बैलेंस्ड होता है, देन यू फील सिक्योरिटी आपको लगती है, यू आर अट्यून्ड, आपको विद द नेचर, यू फील कि लाइफ में पर्पस है। सी मेनी अ टाइम्स लोगों को लगता है कि लाइफ में पर्पस ही नहीं है, वो जिंदगी काटे जा रहा है। बट अगर आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा तो यू विल एंजॉय द लाइफ। नॉट ओनली दैट, जब आपका रूट चक्र बैलेंस मोड में होगा तो आपको ये बावेल की प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा। देयर आर पीपल जिनको खड़े होते हैं तो 2 मिनट लगता है, ट्रेमर होते हैं फुट्स में, वो बंद हो जाएंगे। बीपी की समस्या का कारण, वन ऑफ द रीजन व्हाई यू हैव बीपी इज आपका रूट चक्र इम्बैलेंस मोड में है। एंड मोर देन 50% ऑफ पीपल आफ्टर द एज ऑफ 50 वो बीपी के शिकार होते हैं, आपका रूट चक्र इम्बैलेंस मोड में है। पीपल हु फील कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, उनको बार बार जॉब चेंज करना पड़ रहा है, बार बार बिजनेस चेंज करना पड़ रहा है, दे टेक बिजनेस टू सम लेवल और उसके बाद काम नहीं होता, तो आपका रूट चक्र इम्बैलेंस मोड में है। और रूट चक्र जब इम्बैलेंस मोड में हो तो आपको करना सिर्फ क्या है? ओम रीम नमो लोए, क्या बोलना पड़ेगा? ऐसो पंच नमो करो सव मंगलाणम चम सवेसी पढ़मम हवई मंगलम। मंगलाणम जब सवेसी पढ़मम हवई मंगलम बोलेंगे तो आपका रूट चक्र बैलेंस मोड में हो सकता है। रूट चक्र जब आपका इम्बैलेंस होगा तो घर में रिलेशनशिप के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इफ समबडी इज एक्सपीरियंसिंग रिलेशनशिप टर्बुलेंस, जिसके बारे में अपन जनरली बात नहीं करते, वो आप रूट चक्र बैलेंस करने के बाद आपका वो कंट्रोल में आ सकता है। आपकी जो क्षमता है, योर एबिलिटी, ईच वन ऑफ अस हैव ह्यूज एबिलिटी, लेकिन वी नो इट इन आवर हार्ट कि उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू गेट द फुल एडवांटेज ऑफ इट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो रूट चक्र इज इन अ बैलेंस मोड। सो इट इज कनेक्टेड विथ योर लेग एंड ऑल, इट रूल्स दिस। दिस आर दी सम ऑफ द थिंग्स कि यू ऑलवेज, मतलब कुल मिला के जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं रहती। और उसका कौन सा मंत्र है जिससे आप ठीक करोगे? पढ़मम मंगलम। अच्छा, घर में नाउ लेट मी टेल यू, ये वेरिएबल पार्ट है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इट। इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय साउथ वेस्ट ऑफ योर हाउस। अगर आपका साउथ वेस्ट घर का ठीक नहीं होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ इट राइट नाउ, वो बाद में समय रहेगा तो आई विल पिक अप वन ऑफ यू, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, आई विल चेक योर बॉडी और मैं आपका घर ड्रॉ कर दूंगा स्क्रीन पे कि आप किस घर में रहते हो, कौन से रूम में क्या कलर है, और फिर माइक बंद करके उनसे पूछूंगा कि ऐसा हो रहा है क्या घर में। सो उसमें ये चक्र भी दिख जाएंगे। बट अगर आपका घर का ये पोर्शन भी अगर ठीक है तो आप अपना रूट चक्र बैलेंस मोड में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो सैक्रल चक्र, जो नाभि से 4 अंगुल नीचे पे है। सैक्रल चक्र, यू कैन सी इट हियर, सैक्रल चक्र, जिसको स्वादिष्ठान हिंदी में कहते हैं। देखिए, स्वादिष्ठान चक्र का मतलब यह नहीं है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेक्स और रिप्रोडक्शन ओनली, इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर एबिलिटी टू बी एबल टू बी एक्सप्रेसिव इनफ। आप में वो क्रिएटिविटी होती है कि
आप कोई भी एक नॉर्मल चीज़ है और उसको एक संवार के रखा, मान लीजिए ये यहाँ फूल नहीं होते तो इट वुड हैव लुक ड्राई यू नो, तो आज किसी ने डेकोरेट करके रखा है, तो ये क्रिएटिविटी का एक फॉर्म है। जिंदगी में अपनी काफ़ी चीज़ें, सेम चीज़ यू कैन प्रोड्यूस इट इन अ मच मोर क्रिएटिव वे, जिसमें वो वैल्यू एडिशन होता है। तो वो तभी संभव है व्हेन योर एनर्जी इज बैलेंस्ड इन सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जब बैलेंस होगा तब वो आपको आप में एक साइकिक एबिलिटी भी आएगी, और ऑफ कोर्स पीपल हु हैव प्रॉब्लम इन किडनी, पीपल हु हैव प्रॉब्लम इन लोअर बैक या सेक्सुअल डिफिकल्टी हो, फ्रिजिडिटी हो, किडनी, ब्लैडर, ये सारे आपको चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज़ हियर ऑल द ऑर्गन्स अराउंड हियर इज इम्पैक्टेड, और इसका सिंपल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, क्या बोलेंगे? मंगलाडम चम सवेसी, राइट, दैट इज द लास्ट वन। लास्ट टू इज डिफिकल्ट, मंगलाडम चम सवेसी और पढ़म भवई मंगलम। लेकिन डू यू बिलीव कि मंगलाडम चम सवेसी बोलने से आपका ये चक्र बैलेंस हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? आई विल गिव यू लाइव डेमो, कैसे होता है वो। मैं आपको, आप में से किसी को बुला के आपके चक्रास दिखाऊंगा, तब जाके उसकी मजा आएगी। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि क्रिएटिविटी, इसको मैं एक क्विकली आई विल रिकैप कि आपको इसको डेली यूज में आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी की सबको जरूरत पड़ती है, बट आई टॉक टू यू हाउ यू कैन यूज इट फॉर योर कमर्शियल पर्पस इन योर लाइफ। ओके, एक इसमें एक सैक्रल चक्रास, सी आई कम फ्रॉम एन एरिया विच इज गुजरात, और जहां पर लोग स्पेक्यूलेटिव हैं, बड़े स्पेक्यूलेटिव होते हैं। जब आपका सैक्रल चक्रास इम्बैलेंस होगा ना, यू टेंड टू मेक ह्यूज लॉसेस, लोगों को बड़े लॉसेस लगते हैं। सो पीपल हु प्ले बिग टाइम कि भाई आज बड़ा खेलना है सट्टा में, शेयर मार्केट में, वो हमारी ऑफिस में आके अपना सैक्रल चक्रास चेक कराते हैं। अगर वो ठीक हुआ तो वो खेलते हैं उस दिन, अदरवाइज वी रिकमेंड देम नॉट टू प्ले दैट डे। आई वी टेक इट दैट फार। इसका इलाका जो है घर का बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में है। अगर यहाँ पर भी बैलेंस हो जाएगा तो आपका फाइनेंशियल लॉसेस नहीं लगेंगे, आपका सैक्रल चक्र बैलेंस रहेगा। पीपल हु डू नॉट कंसीव और पीपल हु हैव अ प्रॉब्लम ऑफ किडनी एंड ऑल, दे मस्ट चेक दिस पार्ट ऑफ देयर हाउस। व्हेन आई से दे मस्ट चेक दिस पार्ट ऑफ द हाउस का मतलब है कि मैं आपको बताऊंगा ऑन स्क्रीन कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ये मेरा जब सिर्फ चक्रास पे टॉक शो होता है यूरोप वगैरह में तब वो 5 घंटे का चलता है, बट मेरे को आपको बहुत चीज़ें दिखानी है लाइव डेमो देके, इसलिए आई एम रनिंग इट लिटिल फास्ट। सैक्रल चक्र का मंत्र आपको पता चल गया। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र, जिसको मैं बोलता हूँ मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सिस चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है इट इज अबाउट 2 अंगुल अबाउ द नाभि। सोलर प्लेक्सिस चक्र से क्या होगा फायदा? सोलर प्लेक्सिस चक्र अगर आपका बैलेंस मोड में होगा तब आप कॉन्फिडेंस होंगे, आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, आप सब चीज को एंजॉय कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास सब चीज होती है अंडर द सन, लेकिन वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफ। तो अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस मोड में होना चाहिए। सोलर प्लेक्सिस चक्र जब इम्बैलेंस होता है तब लोगों को डायबिटीज होता है। इनफैक्ट वी आर नॉट इक्विप्ड टुडे, अदरवाइज मैंने इस सब्जेक्ट पे 1500 से ज़्यादा लेक्चर 60 कंट्रीज में दिए हैं, एंड देयर आई हैव केप्ट मेडिकल टीम रेडी। वी पिक अप द मोस्ट डायबिटिक पीपल फ्रॉम द ऑडियंस, उनका रैंडम ब्लड शुगर लेते हैं और सोलर प्लेक्सिस चक्रास भी चेक करते हैं, एंड वो स्लीव पे लगाते हैं। फिर सोलर प्लेक्सिस चक्रास ठीक करने का मंत्र बोलते हैं, 10 मिनट के बाद दोबारा रीडिंग लेते हैं, 20 से 50 पॉइंट कम आते हैं। सो आई विल गिव यू अ प्लान 21 डेज का फॉर यू ऑल, हाउ यू कैन, दोज हु आर डायबिटिक, उनको एक प्रोग्राम बनाऊंगा। आप एक ना एक लॉगबुक कैसे रखेंगे, लास्ट में Q&A सेशन में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सोलर प्लेक्सिस चक्रास ठीक कैसे होगा? नमो अर्यंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयर्याणंग, नमो उवजाणंग, नमो लोए। So you have to recite Om Namo Loe Sava Sahunam. So I have added Om Rim. Om Rim Namo Loe Sava Sahunam. Om Rim Namo Loe Sava Sahunam यदि आप बोलते हैं, this is where your solar plexus chakra is,
एंड इट कैन हेल्प इन योर डायबिटीज। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई गोलियाँ बंद करनी है, बट यू कैन ऑलवेज कीप अ लॉग ना। खाना खाने के बाद, खाना खाना का जब आप शुरू किया उसके 1 घंटा 55 मिनट के बाद यू टेक 1 रीडिंग, फिर 10 मिनट तक आप ओम ह्रीम नमो लोय सव सावणम बोलिए, टेक 1 मोर रीडिंग। ऐसा आप लॉग रखें ना 21 डेज तक, आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर्स कम होते हैं कि नहीं होते हैं। देन प्रॉब्ली यू कैन गो डाउन एंड टू योर डॉक्टर कि वो क्या बता रहा है कि भाई आपको कुछ फाइन ट्यून करना है कि नहीं करना है। लेकिन ओम ह्रीम नमो लोय सव सावणम हैज़ दिस एबिलिटी, एंड आई नो सेवरल पीपल who have over period of time 7.8 HbA1c से almost 6.5 तक ला दिया है by doing this। ओम ह्रीम नमो लोय सव सावणम, ये इनबिल्ट है अपने पास, we don't know, इसलिए अपन यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके लेकिन ये दिस इज द पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट। घर का वेस्ट सोलर प्लेक्सस चक्र से आपकी फुलफिलमेंट भी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति है यहां पर जिन हु हैव नो विशेस है क्या? नहीं ना? तो आप सबके लिए सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस करना अति आवश्यक है। ओम ह्रीम नमो लोय सव सावणम, थिंक अबाउट योर विशेस एंड पुट इट अप। मैं आपको छोटा सा वीडियो शेयर कर दूंगा उसके बाद कि हाउ यू कैन, आपको जो अगर आपकी विशेस फुल करनी है तो क्या करना चाहिए। और वेस्ट ऑफ द हाउस मैं बैठ के वो मंत्र किया, सो मैं आपको बताऊंगा जब भक्तामर की बात करूंगा तब कि भक्तामर का कौन सा मंत्र विश फुलफिलमेंट के लिए, आपको पता है किसी को भक्तामर का कौन सा मंत्र भी? 28वां, उच्चैर शोक तरु संस्कृत मुन्मयूख मा भाति रूपम अमलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। वी विल डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स ना बाद में वी हैव ब्रॉट सम बुक्स, विल शेयर विथ यू कि आप कैसे हाउ यू कैन, आप मंत्र रिद्धि कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ बोल के उस मंत्र को पढ़ा, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर विशेस डन, यू नो। और आप सी बेस्ट पार्ट इन जैनिज्म इज, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या तो करेगा या देरी से करेगा, लेकिन अवश्य करेगा, पक्की बात है, दैट इज विदाउट डाउट। एंड यू नो, आप चलो मैं भक्तामर की बात आए तो बताता हूं। सोलर प्लेक्सस चक्रास आपकी विश फुलफिलमेंट में मदद करता है। और कौन सा मंत्र होगा इसका? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायणं, राइट? हाँ, याद है कि नहीं है? याद है ना? मैं बार बार बोलूंगा, आई सेड आई विल रिपीट, मैं 15-20 बार आपको बोलूंगा जब तक आप भूल नहीं जाओ, ठीक है? सिंपल है, यू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड आई चक्र, ओम ह्रीम नमो अर्यंताणं, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीम नमो आर्याणं, ओम ह्रीम नमो उवज्जायणं, ओम ह्रीम नमो लोय सव सावणम, ठीक है? हार्ट चक्र इज हियर। हार्ट चक्र यदि आपका इम्बैलेंस होगा तो कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेट मी टेल यू दैट। हार्ट चक्र का काम क्या है? यू नो, इट्स प्योर लव। अब प्योर लव सिर्फ मदर को होता है, बाकी तो सबको कोई ना कोई, यू नो, यू हैव सम रीजन फॉर लविंग समबडी। द मदर हैज नथिंग, मदर इज अनकंडीशनल लव। तो व्हेन समबडी सेज ना कि आपको अनकंडीशनल लव होना है, तो अनकंडीशनल ओनली मदर हैज और नोबडी एल्स हैज। बट एनीवे यू कैन कम क्लोजर टू अनकंडीशनल लव। उसका मतलब यह है कि आप लोगों के साथ समभाव से बात करें, यू ट्रीट एवरीबडी इक्वली। किसी को है तू कौन है, यू नो, यू डोंट टॉक टू पीपल लाइक दैट। अगर आप वो कर पाएंगे तो आपका हार्ट चक्र खुलेगा। और जब आपका हार्ट चक्र खुलता है ना, या बैलेंस मोड में होता है, यू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ड कि भाई आई एम स्टक, मेरे इससे आगे बात नहीं बढ़ रही है। ऐसा होता है कभी कभी कि आई हैव रीच्ड द पॉइंट एंड नॉट बियॉन्ड। मैं घूम घाम के वहीं जाके मेरा या तो सेल्स वहाँ जाके रुक जाती है, या इतना ही प्रॉफिटेबिलिटी होती है, या इतना ही मेरा ग्रोथ हो रहा है, उससे बियॉन्ड नहीं हो रहा है। यू आर नॉट गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जब बैलेंस मोड में होगा, ऑफ कोर्स ये सब ठीक है, सेंसिटिव, यू आर बेसिकली, बॉटम लाइन ये है कि आपके पास नए अवसर आएंगे जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस मोड में होगा। और दूसरा, हार्ट चक्र बैलेंस मोड में होगा, ये सब फिजिकल ट्रेट्स है, सर्कुलेशन ऑफ लंग डिसीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्किन, इम्यून सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इफ यू आर डीलिंग इन पब्लिक, अगर यू आर अ फिगर इन पब्लिक, जैसे कोई पॉलिटिशियन है और समबडी समाज के,
कोई बात नहीं बच्चे, अगर आप यू आर समवन इन द सोसाइटी, आपको कोई आगे काम करना, और मे बी इफ यू आर डीलिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस मोड में होगा. मेनी टाइम्स अदरवाइज आई हैव सीन पीपल बिकम L1 लेकिन उसके बाद भी काम नहीं होता, एंड जिनका हार्ट चक्रा बैलेंस है वो L2 के बाद भी दे गेट द नो प्रॉब्लम. इट्स फाइन. सो हार्ट चक्रा आपका बैलेंस मोड में होगा तो आपके इवन द वर्क रिलेटेड टू इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल विल गो वेरी स्मूथ, और आपकी ज़िंदगी में नए अवसर आएंगे. ओके और ऑफ कोर्स इसका डायरेक्ट कनेक्शंस जो है वो घर के ईस्ट से है. उसका क्या मंत्र होगा? ओम ह्रीम नमो अरिहंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयर्याणंग. बिल्कुल पक्का है ना? नमो अरिहंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयर्याणंग, नमो उवज्जायणंग. राइट? सिंपल. आप देखो मैं बार बार बोलूंगा आपको, और फिर एक्चुअली जब आप में से किसी का चक्रस चेंज करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे तब इसकी आनंद आएगा. ओके ओके. थ्रोट चक्रा जैसे यहाँ बोला गया विशुद्धि चक्रा इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन इज अ टू वे ट्रैफिक, तो कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इसी मेनी टाइम्स क्या होता है कि वी हैव अ गुड प्रोडक्ट, लेकिन अगर उसके बारे में अपन बात नहीं कर पाएंगे, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन दी एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स, तो आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस मोड में है. तो जब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस मोड में होता है तो व्हाट हैपन्स इज आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट ठीक से कर पाते हैं, और देन सक्सेस कम्स. यू सक्सेस कैसे आता है? यू स्पीक वेल और यू डोंट स्पीक वेल. आप एबिलिटी टू स्पीक वेल और नॉट डूइंग सो कैन रिजल्ट इन टू इधर. अगर आपका कम्युनिकेशन सही हुआ देन यू आर द किंग और द क्वीन. ओके. सो थ्रोट चक्रा जो है वो आपको हेल्प करता है. आई एम रियली गोइंग लिटिल फास्ट है बिकॉज मैं एक्चुअली इसका लाइव डेमो दिखाना चाह रहा हूँ आपको. सो थ्रोट चक्रा से इट इज ऑफकोर्स टॉकिंग अबाउट दिस वोकल कॉर्ड, ब्रोंकाइटिस वगैरह, नोज, टीथ, थायराइड. वुमन विल पिक अप वन ऑफ द वुमन, आई विल सी क्या थायराइड का स्टेटस है. ओके एंड यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड यही है. तो थ्रोट चक्रा आपका स्ट्रांग होगा. नव इमेजिन अगर आपने थ्रोट चक्रा बैलेंस कर लिया, आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, सो बिफोर गोइंग इनटू द मीटिंग इफ यू जस्ट रिसाइट इट, आई विल शो यू हाउ टू रिसाइट इट. वो करके जाएं और प्रेजेंटेशन करें, आपको फर्क तुरंत नजर आएगा. यू कैन सी इट इंस्टेंटली इन 1 वीक्स टाइम. तो कौन सा मंत्र होगा इसका? ओम ह्रीम नमो अरिहंताणंग, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणंग, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम. वेरी गुड. कम्युनिकेशन ये सब ठीक है, मतलब बॉटम लाइन की बात कर रहा हूं कि कैसे होता है. दिस इज द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल, द पार्ट विच इज बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट. अगर वो आपका घर का स्ट्रांग होगा तो आपकी कम्युनिकेशन पावर भी अच्छी होगी, एंड थ्रोट चक्रा बैलेंस मोड में होगा तो घर में शांति भी रहेगी. नो दिस इज इंपॉर्टेंट है. घर में शांति रहना अति आवश्यक है, वेदर वी एडमिट और नॉट, लेकिन घर में शांति रहनी अति आवश्यक है. शांति 2 तरीके से मिल सकती है. एक तो जो मेरे घर के बाजू में रहती थी वो चली गई शादी होके, उसको लेके आते हैं, और दूसरा आप ये रिसाइड कर लो भाई. ठीक है. थ्रोट चक्रा शांति अति आवश्यक है. ये थर्ड आई चक्रा. ना थर्ड आई चक्रा आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, इट रिसाइड्स हियर. थर्ड आई चक्रा क्या करता है पता है आपको? कि आपको वो चीज दिखाता है. जनरली अपन अवर आई सी, हमारी आंख वो चीज देखती है जो अपन देखना चाहते हैं. इट कैनॉट सी व्हाट इज एक्चुअली देयर. आपने देखा है कभी, आपने कभी पन्ने पढ़ते हैं तो सम लाइन किसी में अगर कंप्लीट नहीं भी किया है स्पेलिंग, लेकिन आप पूरा पढ़ लेंगे एज इफ द स्पेलिंग इज कंप्लीट. ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिकॉज वी आर ट्रेन्ड कि वी सी व्हाट वी वांट टू सी. इट इज नॉट व्हाट इज देयर, वी डोंट सी दैट. तो वो ताकत जो है वो थर्ड आई चक्रा में है, टू सी बियॉन्ड व्हाट यू सी. आप में वो डिस्क्रिनिंग पावर लाता है. व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट, कौन सा सच क्या है, वो आप में वो एबिलिटी जनरेट कराता है. ये सब छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इट हैज़ ह्यूज मीनिंग. अगर जिंदगी में आपको पता चल जाए कि ये टाइम में ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ,
ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वन सिंगल लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेल्योर। वो पॉसिबल है ओनली बाय योर थर्ड आई चक्रा। वो अगर बैलेंस मोड में होगा तो क्या होगा, थर्ड आई चक्रा, यू विल हैव टोटल क्लैरिटी लाइफ में। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ट व्हेन यू टॉक टू चिल्ड्रन, आप क्या बनोगे, क्या करोगे, आई एम नॉट टू श्योर, या दे ऑलवेज से आई एम नॉट टू श्योर, आई डोंट नो, लेट मी सी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। सो हाउ डज हैपन? और घर में जब सहमति नहीं होती है, व्हेन यू सिट ऑन अ टेबल, देयर आर 5 डिफरेंट वॉइसेस कि भाई ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे, क्यों ऐसा होता है? थर्ड आई चक्रा ऑफ पीपल, उस घर में जो रहते हैं उनका चक्रास इम्बैलेंस मोड में है। और थर्ड आई चक्रा कैसे बैलेंस होगा? ओम ह्रीम नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणं, शुरुआत यहाँ से होती है, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणं। अगर आप ओम ह्रीम नमो अरिहंताणं यूँ बोलते हैं, आपका थर्ड आई चक्रा अवश्य बैलेंस होगा। एंड फिर आई मीन लुक, पीपल आर डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, न्यूरोलॉजिकल, आजकल यू कीप हियरिंग कि इसको स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आने का आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सुनना शुरू कर दिया इन दिनों? थर्ड आई चक्रा, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणं कैन डू इट, या। और उसका जो रिलेवेंस है वो घर का नॉर्थ ईस्ट से है। इसके बारे में मैं बहुत बात कर सकता हूँ, बट टुडे लेट मी गिव यू अ डेमो, फिर अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा और बात बताऊंगा। और लास्ट जो है वो है क्राउन चक्रा, सहस्त्रारा, जो ऊपर में है, दैट इज अबाउट आनंद, अति आनंद, यू नो, अलौकिक आनंद। अगर आपका सहस्त्रार चक्रा ठीक हो गया तो यू विल रियली बी एबल टू एंजॉय लाइफ। यू मे हैव मनी, लेकिन मेनी अ टाइम्स पीपल आर नॉट, लोगों को एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। लेकिन अगर आपका सहस्त्रार चक्रा बैलेंस मोड में होगा तो आप में ऑटोमेटिकली आनंद एंजॉय करने की क्षमता खूब बढ़ जाएगी। और उसका कौन सा मंत्र होगा? सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणं थर्ड आई हुआ, सिद्धाणम, आयर्याणम, उवज्जायणम, लोये सव सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासणो, मंगलाणम चम सवेसी पड़मम हवै मंगलम। सो अगर आपके साथ के साथ चक्रा यदि बैलेंस हो गए ना, तो आपका ऑरा बड़ा होना ही पड़ेगा। और अगर आपका ऑरा बड़ा हुआ तो लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी, नॉट जबरदस्ती से, मिठास से, प्रेम से। एंड व्हेन योर ऑरा बिकम्स बिग, यू प्रिवेल। आपकी बात जब कोई सुन लिया तो आपका काम हो गया। तो आपका सातों चक्रा बैलेंस होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डू दिस। वैसे हमने काफ़ी अलग अलग मंत्रों से भी इसकी वी हैव डन द लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन टुडे मैं सीमित करता हूँ सिर्फ ये नमोकार मंत्र से।